Hello dear students, I am Sanjeev Tail, and in this particular video we are going to talk about early Elizabethan plays. In the last lecture we just talked about how drama evolved, how drama originated. We talked about Greek drama, Roman drama, the drama related to Old English, Middle English, Modern English, the Renaissance drama. That was very beautiful lecture, and that was specifically concerned with how drama evolved. And here we are going to talk about early Elizabethan plays. Here we shall be talking about first tragedy, first comedy, and interludes. Now, interludes in theatre were early form of English dramatic entertainment, sometimes considered to be a transaction between medieval morality play and Tudor drama. Now, interludes in theatre were early form of English dramatic entertainment, sometimes considered to be a transaction between medieval morality play and Tudor drama. So, what happened was that earlier in the medieval period, mystery, miracle, and morality plays were performed. And in Tudor period, we have dramatists like Christopher Marlowe and William Shakespeare performing dramas of secular taste. But between this period, from miracle, morality, and mystery plays to the Elizabethan stage, there was also a kind of drama which was performed, and that drama was interlude. That drama was interlude. तो वो ड्रामा एक ऐसा पीरियड भी था, मिरेकल, मोरालिटी और मिस्ट्री प्लेस से लेकर एलिजाबेथन स्टेज के बीच का जो पीरियड है, उस समय एक ड्रामा वहां पर था, और उस तरह के ड्रामा को जो कि उस समय परफॉर्म किया जाता था, उस तरह के ड्रामा को हम क्या बोलते हैं? इंटरल्यूड बोलते हैं. तो मैंने क्या कहा? सो यू कैन से दैट between this period from miracle, morality, and mystery plays to the Elizabethan stage, there was also a kind of drama which was performed, and that drama was interlude. So, interludes, as the name itself suggests, came in between events to provide witty entertainment to the audience. So, interludes, as the name suggests, came in between events to provide witty entertainment to the audience. Usually, interludes are very short and they use the topic of politics or religious issues. Interludes जो है वो short होते थे, और जो टॉपिक्स इंटरल्यूड में यूज किए जाते थे या तो वो पॉलिटिक्स से संबंधित थे या रिलीजन से संबंधित थे. बट दिस वाज डन रादर इन ए फनी मैनर. दिस वाज डन इन ए फनी मैनर. देयरफॉर they are considered as secular farces. The interludes are considered as secular farces. F-A-R-C-E-S. So, inter means बीच में. जब दो ड्रामास परफॉर्म होते थे, दो बड़े ड्रामास परफॉर्म होते थे, तो उनके बीच में विट्टी एंटरटेनमेंट के रूप में इंटरल्यूड्स परफॉर्म होते थे. तो उन दो बड़े ड्रामास के बीच में ऑडियंस के विट्टी एंटरटेनमेंट के लिए इंटरल्यूड्स परफॉर्म होते थे. ओके, तो टू कॉमिक सीन्स बिटवीन टू बिग इवेंट्स. ओके, द पर्पस ऑफ इंटरल्यूड is to entertain the public in a funny manner. One person associated with interludes is Thomas Heywood. Okay? Interludes का जो पर्पस है वो पब्लिक को एंटरटेन करना होता था फनी मैनर में. एक जो व्यक्ति जो इंटरल्यूड से संबंधित है उसका नाम क्या है? थॉमस हेवुड. सो थॉमस हेवुड इज द प्रोमिनेंट प्लेराइट who contributed a lot to the popularity
ऑफ इंटरल्यूड्स। सो थॉमस हेवुड जो है वो कौन है? थॉमस हेवुड इज द प्रोमिनेंट ऑफ प्लेराइट्स हु कंट्रीब्यूटेड ए लॉट टू द पॉपुलैरिटी ऑफ इंटरल्यूड्स। ठीक है, हिज वर्क। तो थॉमस हेवुड को हम एक प्रोमिनेंट इंटरल्यूड के राइटर के तौर पर देखते हैं। ठीक है, तो थॉमस हेवुड को हम एक प्रोमिनेंट इंटरल्यूड राइटर के तौर पर देखते हैं। तो थॉमस हेवुड का जो एक फेमस इंटरल्यूड है वो है फोर पीस। क्या है? फोर पीस। और एक दूसरा जो इंटरल्यूड है उसका टाइटल क्या है इसका? प्ले ऑफ वेदर। पहला इंटरल्यूड थॉमस हेवुड का फोर पीस, दूसरा प्ले ऑफ वेदर। प्ले ऑफ वेदर जो है दिस इज द सेकंड इंटरल्यूड performed by Thomas Heywood. Okay? And the third interlude by Thomas Heywood, that is Sir John the Priest. थर्ड जो इंटरल्यूड है थॉमस हेवुड के द्वारा वो कौन सा है? सर जॉन द प्रीस्ट। These are some best interludes produced by Thomas Heywood. पहला क्या हुआ? फोर पीस, दूसरा क्या हुआ? प्ले ऑफ वेदर, और तीसरा क्या हुआ? सर जॉन द प्रीस्ट। Now we can see that miracle, mystery and morality plays were on religious theme. तो हम क्या देखते हैं कि miracle, mystery and morality plays they were on religious theme and interludes were secular. Secular मतलब धर्मनिरपेक्ष, वो किसी धर्म से संबंधित नहीं होते थे। मिरेकल, मिस्ट्री और मोरालिटी प्ले जो रिलीजियस थीम पर बेस्ड होते थे, और इंटरल्यूड्स जो हैं वो क्या होते थे? सेकुलर होते थे। ओके, सो इंटरल्यूड्स वर ऑन सेकुलर थीम्स एंड देयर पर्पस वाज एंटरटेनमेंट। देयर पर्पस वाज टू प्रोवाइड विट्टी एंटरटेनमेंट टू द पीपल। सो ड्रामा में कुछ चेंजेस आए। सो आफ्टर इंटरल्यूड्स फुल अच्छे ट्रेजिक ड्रामा या कॉमिक ड्रामा या कॉमिक रोमांसेस स्टार्टेड टू कम ऑन एलिजाबेथन स्टेज। तो ड्रामा में कुछ चेंजेस आए। तो इंटरल्यूड्स के बाद जो फुल अच्छे ट्रेजिक ड्रामा थे या कॉमिक ड्रामा थे या कॉमिक रोमांसेस थे, दे स्टार्टेड टू कम ऑन एलिजाबेथन स्टेज। नाउ लेट्स लुक एट द फर्स्ट ट्रेजेडी। हमने अभी इंटरल्यूड्स की बात की, अब हम फर्स्ट ट्रेजेडी की बात करते हैं। जो फर्स्ट ट्रेजेडी थी जिसका टाइटल क्या है? गोर्बोडॉक। फर्स्ट ट्रेजेडी क्या है? गोर्बोडॉक। और इसका सब टाइटल जो है वो क्या है? फेरेक्स एंड पोरेक्स। तो जो फर्स्ट ट्रेजेडी है जिसका टाइटल है गोर्बोडॉक और इसका सब टाइटल क्या है? फेरेक्स एंड पोरेक्स। इट वॉज फर्स्ट परफॉर्म्ड at Christian celebration and performed before Queen Elizabeth I. It was first performed at Christian celebration and performed before Queen Elizabeth I on 1561 by the gentlemen of Inner Temple. तो जो पहली ट्रेजेडी है हमारी वो क्या है? गोर्बोडॉक। इसका सब टाइटल क्या है? फेरेक्स एंड पोरेक्स। और इसको पहली बार परफॉर्म कब किया गया था? क्रिश्चियन सेलिब्रेशन के दौरान क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के सामने 1561 में। और कौन सी एक्टर्स की कंपनी ने इसको परफॉर्म किया? जेंटलमैन ऑफ इनर टेम्पल। कौन सी कंपनी ने? जेंटलमैन ऑफ इनर टेम्पल। दैट वाज द कंपनी विच परफॉर्म्ड दिस फर्स्ट ट्रेजेडी गोर्बोडॉक। जेंटलमैन ऑफ इनर टेम्पल, दिस वाज द एक्टिंग कंपनी। ओके, तो जिसके माध्यम से ये प्ले परफॉर्म किया गया। द नेम ऑफ द कंपनी वाज जेंटलमैन ऑफ द इनर टेम्पल। ऑथर्स ऑफ गोर्बोडॉक। अब गोर्बोडॉक जो हमारा प्ले है, जो पहली ट्रेजेडी है, इसके ऑथर्स कौन है? थॉमस नॉर्टन एंड थॉमस सैकविल। ऑथर्स कौन है? थॉमस नॉर्टन और थॉमस सैकविल, राइट? एंड दिस प्ले इज नोटेबल फॉर सेवरल रीजंस। ये प्ले जो है वो नोटेबल है कई कारणों से। पहला, गोर्बोडॉक was the first verse drama in English. It was the first verse मतलब poetic. It was the first verse drama in English.
It was the first drama in which they had blank verse. तो ये पहली blank verse tragedy थी, पहला वर्स ड्रामा था गोरबोडोक. It was the first drama in which they had blank verse. Blank verse क्या होता है? Poetry without rhyme. Blank verse क्या होता है? Poetry without rhyme. Secondly, Gorboduc was popular due to its political subject matter. Secondly, Gorboduc was popular due to its political subject matter. Subject matter was similar to King Lear. This is the story of two sons, Ferex and Porrex. This is the story of two sons, Ferex and Porrex. Okay? तो फेरेक्स एंड पोरेक्स ये दो बेटों की कहानी है. दे बिकेम ट्रबल टू देयर फादर. इट वॉज ए साइन ऑफ हाउ ऑन एलिजाबेथन ड्रामा वॉज गोइंग अवे फ्रॉम मॉडल ऑफ मोरालिटी प्ले एंड गोइंग टूवर्ड्स सैनिक एंड ट्रेजेडी. तो फेरेक्स एंड पोरेक्स ये दो बेटों की कहानी है. दो बेटे कौन है? फेरेक्स और दूसरा क्या है? पोरेक्स. वो अपने फादर के लिए ट्रबलसम साबित होते हैं. और ये जो ड्रामा था ये इस बात का एक साइन था कि कैसे एलिजाबेथन एज में ड्रामा वाज गोइंग अवे फ्रॉम मॉडल ऑफ मोरालिटी प्ले एंड ड्रामा वाज गोइंग टूवर्ड्स सेनेकन ट्रेजेडी. सेनेका. सेनेका एक फेमस रोमन राइटर है. And Seneca used to write tragedies where there are so many murders, there are so much bloodshed. तो ये जो गोरबोडक जिसका सब टाइटल फेरेक्स एंड पोरेक्स है वो इस बात का एग्जाम्पल है कि कैसे एलिजाबेथन एज में ड्रामा मोरालिटी प्ले के मॉडल से सेनेकन ट्रेजेडी के मॉडल की तरफ जा रहा था. सेनेकन ट्रेजेडी से हमारा मतलब है वो ट्रेजेडी जो सेनेका को फॉलो करती हैं. सेनेका एक रोमन ड्रामेटिस्ट था और इसकी ट्रेजेडीज मर्डर और ब्लडशेड से भरी हुई होती थी. तो वैसे ही कुछ मर्डर और ब्लडशेड हमें गोरबोडक में देखने को मिलता है. सो द ट्रेजेडीज where so many people are murdering each other, they used to be called Senecan tragedies. So this play, Gorboduc, was a forerunner of the whole trend that would later produce Titus Andronicus, written by Shakespeare. Written by Shakespeare. And the other play which is also written by Shakespeare and which is also based on the model of Senecan tragedy, that is King Lear. That is King Lear. So these three plays, Gorboduc, Titus Andronicus, and King Lear, these three plays have same theme and same plot. Another important thing, तो समझ आ गया आपको, गोरबोडक है, किंग लियर है या टाइटस एंड्रोनिकस है, इनका सेम थीम है, सेम प्लॉट है, इनमें ब्लडशेड है, मर्डर है. सेनेकन ट्रेजेडी के मॉडल पे इनको लिखा गया है. Another important thing about Gorboduc, its plot revolves around a mythical king of ancient Britain whose name is Gorboduc. Okay? इसका जो प्लॉट है, its plot revolves around a mythical king of ancient Britain whose name is Gorboduc. Norton and Sackville derived this play from Geoffrey of Monmouth's Historica Regum Britannica. देखिए जो इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये जो है नॉर्टन एंड सैकविल, ये जो प्ले है किसने लिखा है? नॉर्टन एंड सैकविल ने लिखा है गोरबोडक. और इस प्ले का जो प्लॉट है उन्होंने कहां से डिराइव किया? जोफ्री ऑफ मनमथ का एक वर्क है हिस्टोरिया रिगम ब्रिटानिका. हिस्टोरिया रिगम ब्रिटानिका, वहां से इन्होंने जो है ये प्लॉट बोरो किया है. ओके, तो क्या होता है कि ये जो हिस्टोरिया रिगम ब्रिटानिका है जो कि जोफ्री ऑफ मनमथ का वर्क है, दैट सर्व्स एज ए बेस ऑफ दिस प्ले गोरबोडक. तो गोरबोडक के लिए जो प्ले बेस का काम करता है वो कौन सा है?
जोफ्री ऑफ मनमथ का वर्क हिस्टोरिया रीगम ब्रिटानिका। द प्ले रिवॉल्व्स अराउंड डिस्प्यूट बिटवीन टू सन्स ऑफ गोर्बोडोक। कौन है गोर्बोडोक के दो बेटे? फेरेक्स एंड पोरेक्स। उन दोनों के बीच में डिस्प्यूट है, किस बात को लेकर? हु वुड सक्सीड गोर्बोडोक एज ए किंग। फेरेक्स एंड पोरेक्स के बीच में इस बात को लेकर एक डिस्प्यूट है कि कौन गोर्बोडोक के बाद राजा बनेगा। Who will succeed Gorboduc as a king? Both the sons want to be king. Gorboduc is depicted as a very good ruler who gives his kingdom away during his lifetime to his sons. The sons quarrel, and Porrex, the younger son, kills Ferex, the elder. जो छोटा बेटा है पोरेक्स, वो बड़े बेटे पेरेक्स को, जो छोटा बेटा है पोरेक्स, वो बड़े बेटे फेरेक्स को मार देता है। गोर्बोडक्स क्वीन, गोर्बोडक की जो रानी है विडेना, गोर्बोडक की जो क्वीन है विडेना, विडेना एवेंजेस, विडेना बदला लेती है, विडेना एवेंजेस द डेथ ऑफ हर मोर बिलव्ड एल्डर सन बाय मर्डरिंग पोरेक्स। पोरेक्स फेरेक्स को मार देता है। जो क्वीन है विडेना, वो फेरेक्स की मौत का बदला लेती है पोरेक्स को मर्डर करके। सो गोर्बोडक एंड विडेना, और फिर क्या होता है? गोर्बोडक और उसकी जो क्वीन है विडेना, दे आर मर्डर्ड बाय हॉरिफाइंग सब्जेक्ट्स। प्रजा फिर जो है, सब्जेक्ट्स मतलब प्रजा, प्रजा जो है वो गोर्बोडक और विडेना का मर्डर कर देती है। सो दिस इज ए काइंड ऑफ सेनेकन ट्रेजेडी। This is a kind of Senecan tragedy where everybody is killed or murdered at the end of the play. So this was the plot of Gorboduc, जिसका सब टाइटल क्या है? फेरेक्स एंड पोरेक्स। और ये लिखी किसने है? थॉमस नॉर्टन और थॉमस सेक्विल ने। आइडिया कहां से बोरो किया गया है? जोफ्री ऑफ मनमथ के वर्क हिस्टोरिया रीगम ब्रिटानिका से। क्लियर हो गया सबको? नाउ देयर आर सम क्वेश्चंस which are repeatedly asked about this work Gorboduc. In June 2012, there was a question in UGC Net कि tragedy of Ferex and Porrex is the other title of. Tragedy of Ferex and Porrex is the other title of. Ferex and Porrex किसका other title है? The answer is Gorboduc. Now, let's talk about the first comedy performed in English. The first comedy performed in England. The title of that first comedy which was performed in England, that is Ralph Royster Doyster. क्या टाइटल है? Ralph Royster Doyster. Okay? Ralph Royster Doyster, this is 16th century play. This is 16th century play written by Nicholas and Udall. This is 16th century play written by Nicholas and Udall. It is regarded as first comedy written in English language. It seems to be inspired by the works of Plautus and Terence. It seems to be inspired by the works of Plautus and Terence. They were Roman playwrights. Plautus and Terence Roman playwrights थे. Okay? So, Ralph Royster Doyster is the titular character. Ralph Royster Doyster is the titular character. The titular character is a variation on braggart soldier archetype. The titular character is a variation on braggart soldier आर्किटाइप। ब्रैगरेट मतलब जो ढींगे हाँकता है। तो जो टाइटलर कैरेक्टर है वो एक वेरिएशन है ब्रैगरेट सोल्जर आर्किटाइप के ऊपर। व्हेन वी शैल लुक एट लिटरेरी क्रिटिसिज्म, देन वी शैल टॉक अबाउट आर्किटिपल क्रिटिसिज्म। अब ये आर्किटिप क्या होता है मैं थोड़ा सा बता देता हूं, लेकिन जब हम लिटरेरी क्रिटिसिज्म की बात करेंगे तब हम आर्किटिपल क्रिटिसिज्म की बात करेंगे, वहां पर आर्किटाइप को डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। अभी मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि आर्किटाइप्स आर बेसिकली सिंबल्स
which are repeatedly used. Archetypes क्या होते हैं? Archetypes are basically symbols. Archetypes are basically symbols which are repeatedly used. Example given: if a girl is very beautiful, we shall say she is Cinderella. If a girl is very beautiful, we shall say she is Cinderella. So Cinderella is an archetype which is used for beautiful girl. If two people are desperately in love with each other, we say they are Romeo and Juliet. If two people are desperately in love with each other, we say they are Romeo and Juliet. So Romeo and Juliet are archetype. So archetype means they are used as main proponent of that thing. Archetype means they are used as main proponent of that thing. So braggart soldiers are the persons, braggart soldiers are the persons who used to boast about themselves. Braggart soldiers are the persons who used to boast about themselves. They are stock characters. They are stock characters, STOCK. They do not evolve over a time of period. They are flat character. They do not evolve over a period of time. During period of time, they keep on boasting about themselves. So braggart soldier archetype है. Ralph Royster Doyster में we find that that person's Ralph Royster Doyster is a single name. Ralph Royster Doyster is a single name. Ralph Royster Doyster is an old word for boaster. Ralph Royster Doyster is an old word for boaster, Boaster, and he is the hero of this 5-act comedy. Ralph Royster Doyster is an old word for boaster, and he is the hero of this 5 acts comedy, wherein we find that he is good-natured fellow who is fond of boasting about his achievements. यहाँ पर रैल्फ डॉयस्टर एक अच्छे स्वभाव का व्यक्ति है, लेकिन वो शौकीन है बोस्टिंग मतलब ढींगे हाँकने का. वो शौकीन है ढींगे हाँकने का अपनी उपलब्धियों को लेकर. स्पेशली व्हाट ही हैज अकम्प्लिश्ड इन लव. किस बात की ढींगे हाँकता है? स्पेशली व्हाट ही हैज अकम्प्लिश्ड इन लव. He keeps on telling false stories. How girls fall in love with him. He keeps on telling false stories. He keeps on telling how girls fall in love with him. The plot of the play centers on rich widow. इस प्ले का जो प्लॉट है वो किसके ऊपर केंद्रित है? एक रिच विडो के ऊपर. उसका नाम क्या है? क्रिश्चियन क्वेस्टेनेंस. एक रिच विडो के ऊपर इस प्ले का प्लॉट सेंटर्ड है. उस रिच विडो का नाम क्या है? क्रिश्चियन क्वेस्टेनेंस. शी इज सेड टू बी एंगेज्ड विद अदर मर्चेंट हुज नेम इज गुड लक. एक रिच विडो है जिसका नाम है क्रिश्चियन क्वेस्टेनेंस, और ये कहा जाता है कि वो एंगेज्ड है एक दूसरे व्यापारी के साथ जिसका नाम है गुड लक. शी इज टू बी एंगेज्ड टू गुड लक, ए मर्चेंट टू whom she loves a lot. She is to be engaged to Good Luck. Good Luck is a merchant to whom she loves a lot. Ralph Royster Doyster is encouraged throughout the play. Ralph Royster Doyster is encouraged throughout the play by a common trickster figure, by a conman trickster figure, and the name of that conman trickster figure is Matthew Merrick. तो रैल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर को एनकरेज किया जाता है मैथ्यू मैरीग्रिक के द्वारा. क्या करने के लिए? टू वू क्रिश्चियन क्वेस्टेनेंस. तो मैथ्यू मैरीग्रिक रैल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर को एनकरेज करता है कि वो अपना लव दिखाए क्रिश्चियन क्वेस्टेनेंस के प्रति, जो एक रिच विडो है. बट हिज पोम्पस अटेम्प्ट्स डू नॉट सक्सीड. लेकिन उसके जो पोम्पस अटेम्प्ट्स हैं
वो सफल नहीं होते हैं. ओके, रेल्फ देन ट्राइज विद हिज फ्रेंड्स एंड सर्वेंट्स टू टेक इन एंड टेक क्रिश्चियन कॉन्स्टिनेंस बाय फोर्स. तो रेल्फ फिर अपने फ्रेंड, अपने सर्वेंट्स के माध्यम से कोशिश करता है टू टेक क्रिश्चियन कॉन्स्टिनेंस बाय फोर्स. तो क्रिश्चियन कॉन्टिनेंस को जबरदस्ती नियंत्रण में करने के लिए रेल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर अपने फ्रेंड्स और अपने सर्वेंट्स के माध्यम से कोशिश करता है. बट दे आर डिफीटेड बाय हर मेड्स एंड रन अवे. बट दे आर डिफीटेड बाय हर मेड्स. लेकिन क्रिश्चियन कॉन्टिनेंस की जो नौकरानियां हैं वो उन्हें हरा देती हैं. एंड ऑल ऑफ देम रन अवे. ऑल ऑफ देम रन अवे. देन द मर्चेंट गैविन गुडलक अराइव्स शॉर्टली आफ्टर. द मर्चेंट गैविन गुडलक, ये वो व्यापारी है जिससे क्रिश्चियन कॉन्टिनेंस लव करती है. द मर्चेंट गैविन गुडलक अराइव्स शॉर्टली आफ्टर एंड द प्ले कंक्लूड्स हैप्पीली with reconciliation, a prayer and a song. The play concludes happily with reconciliation, a prayer and a song. Now, second comedy, which was shown on Elizabethan stage, the name of that second comedy is Grammar Girton Needle. ये पहली कॉमेडी थी रेल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर जो इंग्लैंड में दिखाई गई थी. नाउ द सेकंड कॉमेडी which was shown on Elizabethan stage, the name of the second comedy is Grammar Girton Needle. That is the name of the second comedy which was performed on the Elizabethan stage. The author is unknown. Grammar Girton Needle का author unknown है. The plot revolves around Grammar. Grammar कौन है? Grammar is the widow. इसका जो प्लॉट है वो ग्रामर के चारों तरफ घूमता है. ग्रामर एक विडो है. शी इज लिविंग इन ए टाइनी रूरल एलिजाबेथन इंग्लिश विलेज. ग्रामर इज ए विडो लिविंग इन ए टाइनी रूरल एलिजाबेथन इंग्लिश विलेज एंड शी इज एन ओल्ड वुमेन हु लूजेस हर ओनली नीडल विच इज वेरी डियर टू हर. तो ग्रामर कौन है? ग्रामर एक विडो है, एक एलिजाबेथन इंग्लिश गांव में रहती है. एक ओल्ड वीमेन है, वो अपनी सुई को खो देती है जो उसे बहुत डियर है, बहुत लवेबल है. शी लूजेस दैट नीडल व्हाइल मेंडिंग ए पेयर ऑफ पेंट्स बिलोंगिंग टू सर्वेंट होज. बिलोंगिंग टू हर सर्वेंट होज. पेंट्स ठीक कर रही थी जो उसके सर्वेंट होज की है. वो ठीक करते हुए वो अपनी सुई को खो देती है. दे आर अपसेट. नाउ द सर्वेंट होज हैज टू वियर पेंट्स फुल ऑफ होल्स. नाउ द सर्वेंट होज हैज टू वियर पेंट्स विच इज फुल ऑफ होल्स. मोस्ट ऑफ द प्ले इन्वॉल्व्स सर्च ऑफ लॉस्ट नीडल. ज्यादातर जो प्ले है उसमें खोई हुई नीडल को ही ढूंढा गया है. Dickon, D-I-C-C-O-N. Dickon is very much like Matthew. Dickon is very much like Matthew. Just as in Ralph Royster Doyster, Matthew Merrigrick is a trickster. Similarly, Dickon, D-I-C-C-O-N, Dickon is beggar and trickster. जैसे रेल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर जो पहली कॉमेडी थी वहां पर मैथ्यू मैरीग्रिक एक ट्रिक्स्टर है, वैसे ही यहां पर डिकॉन एक बैगर है, एक ट्रिक्स्टर है. ही रिप्रेजेंट्स वाइस कैरेक्टर. वाइस मतलब बुरा कैरेक्टर. डिकॉन बुरे कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है. तो डिकॉन रिप्रेजेंट्स एलिगोरिकल. डिकॉन एक एलिगोरिकल कैरेक्टर है, वो इविल पीपल को रिप्रेजेंट करता है. डिकॉन स्टार्ट्स मेकिंग प्लॉट. डिकॉन स्टार्ट्स मेकिंग प्लॉट in order to create little confusion. In order to create little confusion in the life of the girl or the widow. Okay? In the life of the girl or in the life of the widow. He pretends to summon the devil to ask his advice for needle. Dickon pretends that he is summoning, he is calling the devil to ask his advice for needle. Dickon then claims that the devil has told him that answer
to problem to find the needle. ओके तो कहता है कि डेविल ने मुझे बता दिया है कि नीडल कहां मिलेगी. क्या कहता है कि डेविल हैज टोल्ड मी दैट द नीडल विल बी फाउंड बिटवीन कैट चैट रैट. तो डिकॉन कहता है कि मैंने डेविल से बात की है और डेविल ने मुझे बताया है कि नीडल कहां मिलेगी. कहता है कि नीडल विल बी फाउंड बिटवीन कैट चैट रैट. तो चैट बेसिकली स्टैंड्स फॉर डेम चैट. चैट बेसिकली स्टैंड्स फॉर डेम चैट. DAMECHAT. Chat basically stands for Dame Chat. Dame Chat is an old woman who basically lives across the street. Dame Chat एक woman है जो गली के उस पार रहती है. तो स्ट्रीट में एक तरफ ग्रामर नाम की ओल्ड विमेन रहती है, दूसरी तरफ डेम चैट नाम की दूसरी विमेन रहती है. तो डेकन क्लेम्स दैट ही हैज सीन डेम चैट स्टीलिंग द नीडल. तो डेकन क्या क्लेम करता है कि उसने डेम चैट जो दूसरी ओल्ड विमेन है उसको नीडल चोरी करते हुए देखा है. ओके सेपरेटली. और फिर वो सेपरेटली डेम चैट के पास जाता है. डेम चैट को बोलता है कि ग्रामर को ऐसे लगता है कि डेम चैट ने नीडल को चोरी किया है. तो डेकन डेम चैट के पास जाकर कहता है कि ग्रामर को ऐसे लगता है कि तुमने नीडल को चोरी किया है. तो डेम चैट और ग्रामर के बीच में झगड़ा होता है. ओके बोथ फाइट अंटिल फेल ऑन ग्राउंड. दोनों बूढ़ी औरतें लड़ती हैं, जमीन पर गिर जाती हैं. डेकन मेक्स every kind of story to make everybody angry. Okay? And eventually, in the end, truth is revealed. So Deccan makes every kind of story to make everybody angry. And everybody in the end. और क्या होता है? In the end, truth is revealed. सच्चाई सबके सामने आती है. Deccan is given mild punishment. Deccan slaps at Ho's ashes. Deccan slaps at Ho's ashes. Hose feels a prick. Hose feels a prick. Then Hose discovers needle in his pants. Then Hose discovers needle in his pants. तो ये क्वेश्चन एक बार बना है कि अल्टीमेटली नीडल कहां मिली. नीडल वॉज फाउंड इन द पैंट्स ऑफ Hose. In December 2012 there was a question. कई स्टेटमेंट दी गई, उनमें से पूछा गया विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट. तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या थी कि गोर्बोडोक इज ए ट्रेजेडी एंड रेल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर एंड ग्रामर गर्टन नीडल आर कॉमेडी. दिस वाज द करेक्ट स्टेटमेंट. एक क्वेश्चन ये था दिसंबर 2013 में था, विच आर द इंग्लिश प्लेज विच इमिटेटेड Greek and Latin plays. Which are the English plays which imitated Greek and Latin plays? And the answer was, कई आंसर थे, उनमें से सही आंसर जो है वो क्या था? गोर्बोडोक, रेल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर, ग्रामर गर्टन नीडल. ग्रामर गर्टन नीडल. So my dear students, this lecture was specifically concerned with early Elizabethan plays. Okay? तो वी टॉक अबाउट द फर्स्ट ट्रेजेडी, फर्स्ट कॉमेडी, है ना. हमने गोर्बोडोक की बात की जिसका सब टाइटल फेरिक्स एंड पॉरिक्स है. हमने दो कॉमेडी की बात की. पहली कॉमेडी थी रेल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर और दूसरी क्या थी? ग्रामर गर्टन नीडल. इनमें से कई बार यूजीसी नेट में या पीजीटी इंग्लिश स्क्रीनिंग में बहुत से क्वेश्चन पूछे गए हैं. तो इन लेक्चर्स को तैयार कीजिए, अपने नोट्स बनाइए, पढ़ते रहिए. डेफिनेटली you will get success. Okay, that's all for this video, my dear friends. Keep learning, keep yourself busy so that you may get success. Just wait for my next video. Thank you. Thanks a lot.